Assalamu alaikum, this is me, Usman Asir here. My topic for today is analytical chemistry and analytical techniques. Talking about analytical chemistry, we can say that this is the branch of chemistry in which we study how to separate, how to identify, and how to get to know the quantity of the chemical component present in some material. Analytical chemistry has been so important since the early days of chemistry when people were trying to find out the quantity and to find out the elements and the chemicals that are present in the object that they are intriguing. So, analytical technique is basically concerned with the determination of the chemical composition of matter. Analytical chemistry involves two type of analysis in it to identify a substance. The first one is quantitative analysis. इसके हम नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं that quantitative analysis basically means how much of a substance is being added in a compound. Quantitative analysis is the determination of the absolute and relative abundance or the concentration of one, several, or all particles present in a sample. The other one is qualitative analysis. क्वालिटेटिव एनालिसिस के भी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम किसी भी सब्सटेंस की किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी को डिटेक्ट करते हैं कि इसमें कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, इसमें कौन से एलिमेंट्स या कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. Qualitative inorganic analysis is a method of analytical chemistry which seeks to find the elemental composition of inorganic compounds. Quantitative analysis is often used in comparison with qualitative analysis, which seeks information about the identity or form of the substance that are present there. For example, अगर हम बात करते हैं कि if a person is given a substance to identify the chemist, the person, he will use qualitative techniques to identify the compound present and then quantitative techniques to determine the amount of each compound in that sample. The techniques being used for either qualitative or quantitative measurements, there are so many techniques. For instance, हम लोग suppose करते हैं that एक indicator solution जो है वो अपना metal ion के present में अपना color lose कर देता है. तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस जब करेंगे तो हम उस जो हमारे पास इंडिकेटर सोल्यूशन है हम अपने सैंपल में उस इंडिकेटर सोल्यूशन को ऐड करके देखेंगे कि वो हमारे सैंपल में भी कलर अपना लूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर वो कर रहा है दैट मीन्स कि हम श्योर होंगे कि जो हमारे पास जो सैंपल है दैट इज़ सम मेटल आयन. फिर हम उसको डिफरेंट जो हमारे पास इंडिकेटर सोल्यूशन था उसको हम आयन की डिफरेंट कंसंट्रेशंस के साथ ट्रीट करके हम उसको स्टडी करेंगे और फिर इवेंचुअली हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो सैंपल था दैट इज़ अ मेटालिक आयन. As I told you earlier, guys, that there are several analytical techniques that we use to analyze any substance. These analytical techniques are for initially we used to have some classical analytical techniques like flame tests. We have performed so many flame tests in our labs, so we are completely aware of that. The analytical techniques used nowadays are titrometry, electroanalytical methods, spectroscopy, chromatography, gravimetric analysis, and radioanalytical chemistry. और भी बहुत से एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जो लैब्स में यूज़ की जाती हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ इनमें से कुछ को ही डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ टाइट्रोमेट्री यानी टाइट्रेशन. हम सब ने अपनी अपनी लैब्स में टाइट्रेशन परफॉर्म की हुई है, सो वी आर समहाउ फेमिलियर विद दिस टर्म. Titration is basically quantitative analysis
to determine the unknown concentration of an identified analyte. Titration may be of different types like acid-base titration or redox titration. टाइट्रेशन में हम ये करते हैं कि एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं जिसकी हम लोगों को मोलैरिटी उसकी मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम दोनों पता होते हैं, और हम उसको टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट अ सोल्यूशन जिसकी हमें ना तो मोलैरिटी पता होती है और हम बिल्कुल अनफेमिलियर होते हैं उस सोल्यूशन से। हम उसको टाइट्रेशन के थ्रू और फिर जो हमारे पास रीडिंग्स आती हैं हम उनको कंपेयर करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन प्रेजेंट था दैट एनालाइट, उसकी हम लोग फिर कॉन्सेंट्रेशन और इसका वॉल्यूम दोनों चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड में हम लोग उस एनालाइट को स्टडी करते हैं, उसका पोटेंशियल या उसकी करंट को चेंज करके, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उस एनालाइट को डाल के उसमें वोल्टेज और पोटेंशियल का जो डिफरेंस आ रहा होता है हम उसके थ्रू अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो हमारे पास जो सैम्पल था व्हाट इज़ दैट। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बेसिकली फर्दर भी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं इसकी, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो पोटेंशियल होगा उस सोल्यूशन का उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। दिस बेसिकली मेजर्स द पोटेंशियल ऑफ अ सोल्यूशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हम लोग यूज़ करते हैं। जो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अपना एनालाइट इस सेल में, तो इससे हमारा जो सैंपल होता है उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि उसकी केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो जो सेल है पोटेंशियोमेट्री के लिए जो सेल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें बेसिकली हम लोग 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। एक को हम कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है उसका एक कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, जबकि जो दूसरा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है उसका पोटेंशियल चेंज होता रहता है जैसे जैसे हम अपने सैंपल की कॉम्पोजिशन को चेंज करते जाते हैं। जो पोटेंशियोमेट्री है दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंड शार्प वे टू identify some substance, because the end point like that we were having in titration, इसमें end point बिल्कुल भी colors से relate नहीं कर रहा होता। इसमें सिर्फ जैसे ही स्लाइड सा भी चेंज हम लोग अपने सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन में लेकर आएंगे वो ऑटोमेटिकली वो पोटेंशियोमेट्री सेल जो है वो उसको फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेगा और हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पास सैंपल है व्हाट इज़ दैट। द नेक्स्ट वन इज़ कॉलोमेट्री। ये एक साइंटिस्ट पे नेम्ड है बेसिकली। इसमें जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो बहुत सिंपल है कि इसमें जो the measurement of the quantity of the electricity which is directly proportional to the chemical reaction at the electrode। इसको हम लोग डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं, लाइक हम लोग वाटर की कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस में। जैसे हम लोग बटर बनाते हैं, शुगर, चीज़, पेपर या पेट्रोलियम की जितनी भी आइटम्स हम लोग बनाते हैं उन सब में जब हम कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं दैट वी हैव टू चेक कि इसमें कहीं पे कोई मॉइस्चर ना रह जाए। हम उस मॉइस्चर को चेक करने के लिए उसको कॉलोमेट्री से गुजारते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ वोल्टामेट्री। Voltammetry जो है this basically provides an information about the analyte is obtained by measuring the current as the potential is varied. The analytical data for a voltammetric experiment comes in the form of a voltagram, जिसमें कि हम लोग एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं जिसमें एनालाइट वर्सेस पोटेंशियल ऑफ द वर्किंग इलेक्ट्रॉड्स को हम लोग डिफरेंट एक्सिस में लेते हैं। The other one is spectroscopy. Spectroscopy is basically measurement of the interaction between light and matter of the reaction and measurement of the radiation intensity and wavelength
or we can say measuring a specific spectrum, because we know that every single atom and every single molecule have a unique spectra of it. Next one is gravimetric analysis. Gravimetric analysis के हम नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं that there is something related to gravitational effect. So gravimetric analysis is a technique through which the amount of an analyte, the ion being analyzed, can be determined through the measurement of mass. Principle behind this is that the mass of an ion in a pure compound can be determined and then used to find the mass percent of the same ion in a non-quantity of a impure compound. Gravimetric analysis provides a very little room for error, and due to this high degree of accuracy, when performed correctly, this is often used as a reference in analytical chemistry. The next one is chromatography. Chromatography भी हम सब ने ही अपनी अपनी लैब्स में परफॉर्म की हुई है. तो chromatography is basically separating mixtures by passing it in solution or suspension through a medium in which the components move at different rates. As we have done in our lab, the red one, the green one, and the blue one, we have mixed 3 inks all together, and then we put a drop of that ink solution onto a filter paper, और फिर हमने देखा था कि वो different rates पे move कर रहा था. डिफरेंट कलर ने डिफरेंट रेट पे मूव किया था और डिफरेंट डिस्टेंस जो थे वो तीनों कलर्स ने कवर किए थे. इसके पीछे जो प्रिंसिपल आता है वो है दैट द मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर दैट आर अप्लाइड ऑन टू द सरफेस और इनटू द सॉलिड और फ्लूइड स्टेशनरी फेज, जो कि स्टेबल फेज होता है, इज सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर वाइल मूविंग विद द एड ऑफ अ मोबाइल फेज. दैट फिल्टर पेपर इज दैट मोबाइल फेज. क्रोमेटोग्राफी की भी फर्दर 3 डिफरेंट टाइप्स हैं. गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. Let's talk about gas chromatography. Gas chromatography is basically a type of basically quantitative technique. Its principle is that the sample solution is injected into the instrument, enters a gas stream while transport the sample into a separation tube known as the column. The various components are separated inside the column at different rate according to which they are differentiated. बिल्कुल वही चीज़ है जैसे हमने क्रोमेटोग्राफी में की थी, यानी कि हम जो गैस क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर होगा उसके कॉलम में हम लोग इंजेक्ट करेंगे आवर सैंपल, और वो उसमें जाने के बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी जो वोलेटिलाइजेशन हो जाएगी, जब वो वॉलेटाइल हो जाएगा कंपाउंड, यानी कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो उस डिफरेंट रेट पे अपने मास के अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट रेट पे कुछ बहुत जल्दी स्टीम फेज में चले जाते हैं, कुछ थोड़ी देर में जाते हैं. उसकी बेस पे हम लोग अपने जो हमारे पास जो कंपाउंड था, जो सैंपल था हमारा, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. लेकिन इस गैस क्रोमेटोग्राफी के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. लेट्स टॉक अबाउट देम. द फर्स्ट वन इज दैट इट इज़ लिमिटेड टू द वॉलेटाइल सैंपल. जो नॉन वॉलेटाइल होंगे ऑब्वियसली दे वुड नॉट कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू द evaporation vapor forms. The number 2 is not suitable for thermally liable sample. Of course, अगर हम लोगों को कोई चीज़ वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, वी विल प्रोवाइड हीट टू दैट. लेकिन अगर वो थर्मल लाइबल है, उस पर हीट का कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो हाउ कुड वी चेंज आवर सैंपल इनटू गैसियस फॉर्म. And the third one is during injecting that sample into the column, जो sample होगा, make sure that don't react to the column. ये ना हो कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो और जैसे ही हम उसको इंजेक्ट करें तो वो कॉलम के साथ ही रिएक्ट करते हैं.
Next is high performance liquid chromatography. This is basically used to separate, identify, quantify each component in a mixture. All chromatographic separations, including HPLC, operates under the same principle almost, that the separation of the sample into its constituent is due to the difference in the relative affinities of different molecules for the mobile phase and the stationary phase used in the separation. The HPLC is called high performance liquid chromatography because of unique, highly sophisticated chromatic equipment is being used in this. Next is thin layer chromatographic. Thin layer chromatographic technique is used to separate known volatile mixtures, because हम लोगों ने पहले ही बात की कि गैस chromatographic जो होती है that is just limited to the volatile substances. तो जो non volatile होंगे we will take them to the thin layer chromatographic. This is performed on a sheet of glass, plastic or aluminium foil which is coated with the layer of absorbent material like silica gel or cellulose. Last one is gas chromatographic or mass spectrometry. mass spectrometry जो है basically इसमें हम लोग एक chamber use करते हैं that we have used initially in the gas chromatographic chamber. उसी के साथ हम लोगों ने mass spectrometry का भी chamber लगाया हुआ होता है. हम लोगों को इसमें बेसिकली करना ये होता है कि जो हमारा सैंपल है वी विल इंजेक्ट दैट सैंपल दैट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट सैंपल इनटू द गैस क्रोमैटोग्राफिक चैम्बर. वो वहाँ से वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होके अपनी लाइक डिफरेंट वेपर्स के भी डिफरेंट डिफरेंट उनके मैसेज के अकॉर्डिंगली वो मूव करेंगे. जो थोड़े से ज़्यादा वेट मॉलिक्यूलर मैस होगा जिनका ऑब्वियसली दे विल मूव स्लोली, एंड जिनका कम होगा दे विल मूव मोर फास्टर. वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली मूव करेंगे टूवर्ड द मैस स्पेक्ट्रोमेट्रिक चैम्बर. मैस स्पेक्ट्रोमेट्रिक चैम्बर में जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर डिफरेंट जब वो उसके साथ कोलाइड करेंगे मॉलिक्यूल्स जाके, तो वहाँ पे एक डिफरेंट पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा दैट वी कॉल फ्रेगमेंटेशन पैटर्न. हर एक का मॉलिक्यूलर मैस डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो भी डिफरेंट होंगे. हम हर एक के प्योर आइन के यानी कि प्योर सोल्यूशन के फ्रेगमेंट्स को अगर स्टडी कर लें और फिर उस प्योर फॉर्म में जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स आए थे उसको, और जो हमारे पास हमारा जो सैम्पल था उसकी जो फ्रेगमेंटेशन आई थी, अगर हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे देन वी विल कम टू नो कि हमारे पास जो सैम्पल है व्हाट इज़ दैट एंड व्हाट सब्सटेंसेस आर देयर इन दैट कंपाउंड. That's all. Thank you so much.